Hey everyone, it's your Sireti Physio Akshay Kumar and I welcome you all to this new video. This video is very unusual and different, I know, because currently I am in my village and I don't have any location or my equipment here to shoot any lecture. So I thought let's have a discussion on something different topic, like I thought let's have a discussion on the myths regarding the physiotherapy. If you are a student of physiotherapy, अगर आप BPT परस्यू करना चाहते हो, अगर आपको BPT को या फिर फिजियोथेरेपी एज ए प्रोफेशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द मिथ्स, या फिर आप पेशेंट हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर ए फिजियोथेरेपिस्ट और confused about the physiotherapist, so let's have a look on this video. Let's debunk all the myths regarding the physiotherapy in this video. This is a completely unscripted video and I don't know what will I speak here, but still let's start this video. So the first myth is physiotherapy is just for sports person and the sports injuries. It is true कि फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स इंजरीज में होता है, जस्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड एंड टू प्रिवेंट द इंजरीज ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स. बट इट इज़ नॉट ट्रू कि फिजियोथेरेपी सिर्फ स्पोर्ट्स में ही इस्तेमाल होता है. We have a wide spectrum of the physiotherapy right now. We have the physiotherapy in orthopedic conditions, in the neurological conditions, in the gynecological conditions, in the pediatric conditions, in the geriatric conditions, in the cardiology conditions. तो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है फिजियोथेरेपी का. इनफैक्ट इन द ICUs फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा होता है. न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में अगर बात करें तो वी हैव स्ट्रोक, वी हैव द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वी हैव जीबी सिंड्रोम, वी हैव पार्किंसंस, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फिजियोथेरेपी पे डिपेंडेंट होते हैं टू रीगेन देयर फंक्शन एबिलिटी, है ना. सेम इन केसेस और इन द केस ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जो भी पोस्ट फ्रैक्चर केसेस हैं, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं, वो TKR का केस हो, THR का केस हो, कोई भी केस हो इस टाइप का, उन सभी कंडीशंस में फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? टू रीगेन द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द पेशेंट, टू रीगेन द ADL, द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसका जो एबिलिटी होता है उसे रीगेन करने के लिए. सो फिजियोथेरेपी इज नॉट लिमिटेड अप टू स्पोर्ट्स. Physiotherapy has a wide spectrum in each and every specializations of the medical field currently. Okay, so this was the first myth, that the physiotherapy is just for sports person. It is not. It is for the normal population too. Second myth is you need a doctor's, physician's or the orthopedician's referral to visit the physiotherapist. It is again wrong. It is not true. In India or in abroad, kahin bhi, you can directly get in touch with the physiotherapist. Why? Because physiotherapist is also a medical professional. उनके पास ये ability होता है to assess the patient, to diagnose the patient, to make the treatment plan according to the need of the patient, है ना. इसलिए you can just get in touch with the physiotherapist directly without any referrals. हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कंडीशंस जहाँ पे फिजिशियंस रेफर करते हैं, जहाँ पे ऑर्थोपेडिशियंस रेफर करते हैं टू द फिजियोथेरेपिस्ट, बट इट इज़ नॉट ट्रू कि हमेशा आपको रेफरल्स की जरूरत पड़ेगी. काफ़ी बार ऐसा होता है दैट बिकॉज ऑफ सच रेफरल्स बहुत सारे पेशेंट्स में रिकवरी बहुत डिले हो जाता है. सो इफ़ यू आर विलिंग टू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, you do not need any type of referrals. You can directly get in touch with any physiotherapist near you. So this was the second myth, that the doctor's referral is necessary to visit the physiotherapist. It is not. Fourth myth is once we start the physiotherapy we cannot stop. It is completely wrong again. बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमने फिजियोथेरेपी सेशंस लेने स्टार्ट किए तो हमें हमेशा लेने पड़ेंगे. ये गलत है. एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको गैस्ट्रिक, आपको एसिडिटी है और आप गैस की दवा पेंटोप्राजोल लेते हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम ले रहे हो. आपका एसिडिटी ठीक हुआ, आपने दवा लेना बंद कर दिया, आपने अपने मेडिकेशन स्टॉप कर दिए. बिल्कुल उसी तरह फिजियोथेरेपी भी वर्क करता है. वंस वी विजिट एनी पेशेंट और एनी पेशेंट विजिट अस, वी असेस द पेशेंट. हम पेशेंट का असेसमेंट लेते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द करेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट वी प्रिपेयर अ गोल, वी प्रिपेयर अ एम ऑफ आवर पेशेंट, कि हमें उस पेशेंट में क्या क्या गोल्स चाहिए. फॉर एग्जांपल, किसी पेशेंट का ये एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ था, एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, तो हमारा गोल क्या रहेगा? हमें इस जॉइंट को, हम इस पेशेंट को एसेस करेंगे, उस बेसिस पे हम गोल प्रिपेयर करेंगे कि भैया हमें इस हैंड का फ्लेक्शन कराने हैं, मसल्स के जो गर्थ हैं अगर वो गर्थ कम हो गए हैं, मसल के फंक्शन लॉस हो गए हैं, मसल के पावर लॉस हो गए हैं, या फिर कोई नर्व कंप्रेशन है, हमें उसे ठीक करना है. तो हमारे पास एक गोल होता है, हमें उस गोल को अचीव करना है. वंस वी अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, फिजियोथेरेपी कैन स्टॉप. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपका गोल अचीव होने के बाद हम फिजियोथेरेपी को स्टॉप करते हैं. सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट वंस यू स्टार्ट फिजियोथेरेपी आपको हमेशा फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा. इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन. कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ टाइम फिजियोथेरेपी की नीड होती है, लाइक पार्किंसंस डिजीज. इन पार्किंसंस there is a lifetime requirement of the physiotherapy just to maintain the patient. We cannot recover the patient of the Parkinson, we just maintain the patient of the Parkinson, है ना. then उन सभी conditions में रेगुलर सेशंस की जरूरत पड़ती है. सो देयर आर सम कंडीशंस जहाँ पे ऐसे कुछ जरूरत होती है. दोज आर द एक्सेप्शनल कंडीशंस, बट इन अ नॉर्मल कंडीशन
हम गोल को अचीव करते हैं, आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल इन द पेशेंट वी कैन स्टॉप द फिजियोथेरेपी. So this was the fourth myth, that once we start physiotherapy we should go for a long time. It is not true. It will always depend on your condition and your assessment. Okay, so the next myth is you can do your own physiotherapy at home without any certified physiotherapist. Again, it is wrong. You cannot do your own physiotherapy without the help of the certified physiotherapist. We as a physiotherapist have a deeper knowledge of all the anatomical structures, the ligaments, bones, nerve supply, the muscles, the muscle action, the biomechanics especially. इन सभी चीज़ों का हमारे पास deeper knowledge होता है. We assess the patient and we make the treatment protocol according to the need and according to the goal of the patient. आप ये नहीं कर सकते. बहुत बार ऐसा होता है कि खुद से करने के चक्कर में, खुद से अपना फिजियोथेरेपी करने के चक्कर में जो कंडीशन है और बदतर हो जाता है, कंडीशन और ख़राब हो जाता है पेशेंट्स का. सो इट इज़ नॉट ट्रू एंड I am warning you, if you are a normal person, if you are not a physiotherapist, don't try physiotherapy by your own at your home. We as a physiotherapist also design home exercises plan. हम जब भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं उसमें होम एक्सरसाइजेस प्लान भी बनाते हैं, उसमें होम एक्सरसाइजेस प्लान भी देते हैं जो कि आप खुद से कर सकते हो. वो हम ट्रेन करते हैं आपको. ऐसा नहीं कि आप खुद से कुछ भी कर लो और आपका कंडीशन रिकवर हो जाए. ऐसा करने से जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो और बढ़ भी सकती है. सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट यू कैन डू योर फिजियोथेरेपी बाय योर ओन एट योर होम. So the last myth of this video, it is just for the students of physiotherapy or to those who want to pursue physiotherapy as a career. उन्हें ऐसा लगता है that physiotherapy is a very bad career option. ऐसा होता तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये वीडियो नहीं बना रहा होता और इतने सारे लोग फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे होते. अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने अभी तक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को देखा ही नहीं है ना. फिजियोथेरेपी इज़ वेरी गुड करियर ऑप्शन. मैंने इस वीडियो में पहले भी बात की दैट फिजियोथेरेपी हैज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है स्पेशलाइजेशंस का फिजियोथेरेपी में. हमारे पास ऑर्थोपेडिशियंस हैं, हमारे पास पीटी इन ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हैं, पीटी इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, जेरियाट्रिक कंडीशंस है, पेडियाट्रिक कंडीशंस है, गाइनेकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजी कंडीशंस हैं, स्पोर्ट्स कंडीशंस हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं ना. वी कैन डू एनीथिंग इन ऑल दिस कंडीशंस, इन ऑल दिस डिपार्टमेंट्स, इन ऑल दिस स्पेशलाइजेशंस. ऑल दैट इज नीडेड इज द स्किल. अगर आपके पास स्किल है, इफ यू हैव द स्किल टू ट्रीट द पेशेंट, इफ यू हैव द स्किल टू असेस द पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ फिजियोथेरेपी. इफ यू कैन डू द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट वेरी गुड, इफ यू कैन ट्रीट द पेशेंट प्रॉपर्ली, इफ यू कैन मेक द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एज पर द नीड एंड एज पर द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस फील्ड. अगर आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन में जाने हो, यू कैन डू एनीथिंग. और पैसा का बात रहा, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी. ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे पैसे की कमी है. कमी किस चीज़ की है? कमी स्किल्स की है. अगर आपके पास स्किल है, आप स्किल डेवलप करते हो, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो. सो फिजियोथेरेपी इज़ नॉट अ बैड करियर ऑप्शन. ओके, सो दिस आर ऑल द मिथ्स. इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हुआ. इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, बताना आप सब कमेंट सेक्शन में. और मैं कोशिश करूँगा अगर इस पर अच्छा व्यू आता है तो आई विल ट्राई टू मेक सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. और इस तरह के और भी डिस्कशंस मैं करूँगा अगर इस वीडियो पर रीच अच्छा आता है तो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप लर्निंग.